بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسحاق ڈار کے آتے ہی قوم کو سرپرائز ملنے لگے۔ ڈالر کی تنزلی کے بعد پیٹرول بھی 12 روپے 63 پیسے سستا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 12 روپے 13 پیسے کی کمی کر دی گئی۔ شہریوں نے کہا ہے مہنگائی کے دور میں اتنا ریلیف بھی حوصلہ افزا ہے، مگر بدترین حالات کی وجہ سے مزید کمی ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار کی واپسی عوام کو وقتی ریلیف کا باعث بننے لگی۔ ڈالر مسلسل ڈاؤن، قومی قرضوں میں کمی ہو گئی، ساتھ ہی رات میں پیٹرول بھی سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 12 روپے 63 پیسے کم ہونے کے بعد 224 روپے 80 پیسے ہو گئی۔ وزیر خزانہ کے اعلان کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 13 پیسے کی کمی کی گئی۔ مٹی کا تیل 10 روپے 19 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ 15 دن کے لیے لائٹ ڈیزل 10 روپے 78 پیسے نیچے آ گیا۔ ادھر شہریوں نے پیٹرول سستا ہونے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ جب بڑھاتے ہیں تو پھر 40 35 50 روپے بڑھاتے ہیں، اور 5 7 روپے 8 روپے کم کر کے تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا بڑا تیر مار دیا ہے۔ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کم از کم فیول سستا ہوگا تو لوگوں کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا کہ مہنگائی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے۔ کافی زیادہ پہلے انہوں نے بڑھا دیا تھا، اب اگر کم کر دیا ہے تو فائدہ تو ہوگا اس میں لوگوں کا۔ مزید سستا ہونا چاہیے، 150 سے بھی کم ہونا چاہیے۔ شہریوں کے مطابق مہنگائی کے وار کے آگے ہر کوئی پریشان ہے، پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی ہونی چاہیے۔ حکومت نے عوام کو ڈیزل کی قیمت میں مکمل ریلیف سے محروم کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر پر لیوی میں 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل میں لیوی برقرار رکھنے سے قیمت مزید کم ہو جانا تھی۔ پیٹرول پر لیوی میں فی لیٹر 5 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی 37 روپے 42 پیسے سے کم کر کے 32 روپے 42 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرح 0 برقرار رکھی گئی ہے۔ حکومت نے عوام کو ڈیزل کی قیمت میں مکمل ریلیف سے محروم کیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے فی لیٹر پر لیوی کے 5 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی برقرار رکھنے سے قیمت مزید کم ہو جانا تھی۔ پیٹرول پر لیوی میں فی لیٹر 5 روپے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرح 0 برقرار رکھی گئی ہے۔ عمران خان کی ایک اور آڈیو کا شور ابھی تھما نہیں تھا کہ ایک اور بڑا انکشاف ہو گیا۔ سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہو گئی۔ کابینہ میں انکشاف ہوا کہ فراڈ جعل سازی کے بعد یہ سائفر بھی چوری کیا گیا ہے۔ سائفر کا اندراج موجود ہے مگر ریکارڈ کی کاپی موجود نہیں۔ مزید حقائق کے سامنے آئے کہ سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے۔ سائفر کا شور مگر سائفر ہے کہاں؟ کابینہ نے سائفر کی چوری کا بڑا انکشاف کر دیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ فراڈ جعل سازی فیبریکیشن کے بعد سائفر چوری کر لیا گیا۔ متعلقہ ڈپلومیٹک سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے ہی غائب ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں وصولی کا اندراج موجود ہے لیکن اس کی کاپی ریکارڈ میں موجود نہیں۔ قانون کے مطابق یہ کاپی وزیر اعظم ہاؤس کی ملکیت ہوتی ہے۔ کابینہ نے سائفر چوری کو آئینی حلف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ تفصیلی مشاورت کے بعد کابینہ نے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جو سابق حکومت سمیت تمام ملوث کرداروں کے خلاف قانونی کارروائی کا تعین کرے گی۔ کمیٹی میں حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے نمائندوں کے علاوہ خارجہ، داخلہ، قانون کی وزارتوں کے وزراء شامل ہوں گے۔ کابینہ اراکین کے مطابق عمران خان کی آڈیوز نے عمران خان کی سائفر سے متعلق مجرمانہ سازش بے نقاب کر دی ہے۔ ادھر دفتر خارجہ کی بھی وضاحت سامنے آ گئی۔ سائفر دفتر خارجہ کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آڈیو لیک پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی پی ٹی آئی سے متعلق آڈیو لیکس کا ٹرانسکرپٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے اسپیکر کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں سے متعلق فوجداری سازش کی۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں سے متعلق آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے۔ تحقیقاتی کمیشن وزیر اعظم، رانا ثناءاللہ، اعظم وزیر تارڑ، خواجہ آصف اور اسپیکر سے تحقیقات کرے۔ پی ٹی آئی نے درخواست متفرق استعفوں سے متعلق زیر التوا مقدمے میں دائر کی ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی پاکستان تحریک انصاف سے متعلق آڈیو لیکس کا ٹرانسکرپٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے اور وزیر اعظم وفاقی وزراء نے اسپیکر کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی استعفوں سے متعلق فوجداری سازش کی۔ اسی پر مزید ڈیٹیلز کیا ہیں جو حسیب عباسی سے ہم جانیں گے، بتائے گا جو حسیب۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آلریڈی زیر سماعت ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے معاملے کو درست قرار دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی نے
सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल कर रखी है। उसी केस में अब ये एक ट्रांसक्रिप्ट भी फाइल किया गया है जो इस्तीफों की मंजूरी का मामले के साथ साथ जो ऑडियो लीक्स के हवाले से है, और इसमें ये सलाह की गई है कि इस मामले के ऊपर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और इस मामले के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ नई नई ऑडियो लीक्स आ रही हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरे होना शुरू हो गए। हालांकि जो एक चीज़ इस तमाम पूरे इवेंट से ही आया होती है कि चाहे वो साबका वज़ीर आज़म हो या मौजूदा वज़ीर आज़म हो, स्पीकर ऑफिस जो है उसकी सिक्रेसी ब्रीच हुई है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, और इस मामले के ऊपर अब देखना ये है कि जो अस्करी क़यादत और हुकूमती क़यादत है किस तरह के इक़दाम उठाती है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जहां से बाबा से। उम्रें 2 और 3 साल की बताई जा रही हैं। जिला कंबर की तहसील कबू सईद खान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। इस पर मजीद तफसीलात के हैं खुदा बख्श से हम जानेंगे। खुदा बख्श, क्या अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए? जी बिल्कुल, अभी तक जो कोई इक़दाम हुकूमत की जानिब से नहीं किए गए। जिला कंबर शहजादकोट की मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिला कंबर शहजादकोट की तहसील कबू सईद खान के इलाके कच्ची पुल में मलेरिया और गैस्ट्रो से मजीद 2 बच्चे जांबाक हो गए हैं। जांबाक होने वालों में जो है 2 साल का सोहेल खोसो और 3 साल का बच्चा फ़हीम गादी शामिल है। और जिला कंबर शहजादकोट की बात की जाए तो जिला कंबर शहजादकोट की इंतजामिया जो है वो जो है मरीजों के लिए कुछ नहीं कर रही है और कुछ इक़दाम नहीं उठा रही हैं। जी शुक्रिया आपका खुदा बख्श। जैकबाबाद सैलाब मुतासरीन का इमदादी सामान न मिलने पर टायर्स को जलाकर एहतजाज। मुजाहिरीन का कौमी शाहराह पर धरना, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। कौमी शाहराह को बंद कर दिया जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है और गाड़ियों की तवील कतारें भी लगी हुई हैं। अभी हालात और मनाजिर क्या है, असद अली मुगल से हम जानेंगे। बताइएगा असद। असद सुन पा रहे हैं तो बताइएगा अभी क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि दिन ब दिन सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान मुसलसल मुतासरीन का एहतजाज जारी है। आज भी सैलाब मुतासरीन की जानिब से सिंध और बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह पर टायर जलाकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। जब हमारी मुतासरीन से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें इमदादी सामान से महरूम रखा जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से मनपसंद अफराद में इमदादी सामान तकसीम करके हमें महरूमी की तरफ धकेला जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हमें जल्द अज जल्द इमदादी सामान फराहम किया जाए जिसकी वजह से हमारी मुश्किलात दूर हो सकें। जी शुक्रिया आपका। कराची के सचलकोट में कायम सरकारी स्कूल्स के अंदर रिलीफ कैंप से सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर शिकवा। कहते हैं मुस्तकिल रिहाइश और पैसा दिया जाए तभी हम यहाँ से जाएंगे, खैमा बस्ती में नहीं जाना। रिपोर्ट करेंगी मोना सिद्दीकी। कराची सच्चलकोट के सरकारी स्कूलों में कायम रिलीफ कैंप रिलीफ के बजाय तकलीफ देने लगे। सैलाब मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतासरीन ने कहा फलाही इदारे 3 वक्त का खाना, गैर सरकारी तंजीमें अद्वियात फराहम कर रही हैं, मगर हुकूमत की बेहिसी पर अफसोस है। बच्चों का दूध नहीं मिल रहा है, 2 हफ्ते हो गए हैं, सर्फ नहीं है, साबुन नहीं है, राशन नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, हमारा मकान भी गिर गया है। टेंट सिटी से ला इल्म सैलाब मुतासरीन का कहना है हमें आर्जी नहीं मुस्तकिल ठिकाना दिया जाए। हमें जहाँ टेंट पे बुलाएंगे ना, हम टेंट नहीं जाएंगे, नहीं क्यों, जो वहाँ पे ना सहूलत है ना कुछ है। हमारे घर थोड़ा ही है उधर गांव में, जब निकलेंगे तो जाएंगे, अभी तो नहीं निकलेगा, पता नहीं 2 साल लगे 3 साल लगे। आर्जी कैंप के सबब सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा और रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों की तालीम का सिलसिला जल्द शुरू होना चाहिए। रिलीफ कैंप में रिहाइश पजीर सैलाब मुतासरीन के ताहाल मसाइल हल ना हो सके, ये आज भी हुकूमती तवज्जो और इमदाद की आस लगाए बैठे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची।
मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1693 हो चुकी है, जबकि जख्मियों की कुल तादाद 12,865 हो गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान और पंजाब में 5-5, सिंध में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। दम तोड़ने वालों में 724 मर्द, 340 खवातीन और 629 बच्चे शामिल हैं। सैलाब के बाद बात करेंगे महंगाई की। पेशावर में आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान पर है। 20 किलो स्पेशल आटे का थैला 2100 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि फाइन आटे का थैला 2250 रुपए का हो गया है। बढ़ती हुई कीमतों से शहरी भी परेशान हैं। शहरियों का क्या कहना है, लिहाज अली हमें बताएंगे। पेशावर में इस वक्त 20 किलो मिक्स आटे की कीमत तकरीबन 2150 से 2200 रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा जो सुपर फाइन आटा है वो 2200 से लेकर 2250 तक, और जो दानेदार है वो इस वक्त तकरीबन 2300 रुपए तक 20 किलो का तेला मिल रहा है। यहाँ पर मकामी ताजरों का कहना है कि आटे की कीमतों में अगले चंद हफ्तों में मज़ीद इजाफे का खदशा है, जिसकी बड़े वजह पंजाब से आटे की सप्लाई में कमी है। ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर मकामी ताजरों का ये भी कहना है कि पंजाब से जो आटे की सप्लाई की जाती है वो परमिट के ज़रिए की जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे ट्रक जिनके पास परमिट नहीं होते उन्हें अटक, जेलम और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर रोका जाता है और उनको पर्चा किया जाता है, जिसकी वजह से आटे की सप्लाई में तातुल पैदा हो जाता है और उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की है, लेकिन सिंध की तरह खैबर पख्तूनख्वा के महकमा खुराक का कहना है कि इस वक्त गंदम की कीमत तकरीबन 4000 रुपये फ़ी 40 किलो इसकी मुकर्रर करने की तवक्को है। जी। कोहस्टार यूनिवर्सिटी मरी में वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने खुसूसी शिरकत की। एंटरप्रेन्योरशिप पर पैनल डिस्कशन की सदारत भी की। इस्लामाबाद से साकिब सईद। कोहस्टार यूनिवर्सिटी मरी में वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर समेत चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की शिरकत। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर और डिस्कशंस हुई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने एंटरप्रेन्योरशिप पर सेशन की सदारत की। डॉक्टर सुमेरा रहमान का कहना था कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का मकसद था कि जॉब ढूंढने वालों की बजाय जॉब देने वाले पैदा किए जाएं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता एंटरप्रेन्योरशिप ही है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग क्या सिखा सकते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका बुनियादी मकसद यही था कि जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर्स कैसे जो है वो क्रिएट करने हैं, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है वो यूथ में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। ये ETTP प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ स्टूडेंट को इनेबल और एम्पावर करता है बल्कि फैकल्टी को भी इनेबल और एम्पावर करता है, और इस एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अपनी तकरीर में यूनिवर्सिटीज के आपस में ताउन और मिलकर काम करने पर जोर दिया। सारे वाइस चांसलर बहुत अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है, सिर्फ ये है कि मिल के काम करने। वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस में आज फूड सिक्योरिटी, सेहत, तवानाई और दीगर मौजूआत पर सेशंस का इनेकाद होगा। कैमरामैन जावेद असलम के साथ साकिब सईद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। सरकारी स्कूल का नाम आते ही जहन में पुरानी बिल्डिंग, अंधेरे कमरे, तख्ता स्याह और छत पर तेज आवाज वाले पंखों का कुछ नक्शा सा बन जाता। लेकिन पेशावर में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल तलबा को ऐसी सहूलियात फराहम कर रहे हैं जो निजी स्कूल्स में भी मौजूद नहीं है। स्कूल में तलबा के लिए बुनियादी सहूलियात से मुतालिक जानेंगे शाहिद खान की इस रिपोर्ट में। AC क्लासरूम्स, LED स्क्रीन्स और बिला तातुल बिजली की फराहमी। ये कोई निजी तालीमी इदारा नहीं बल्कि पेशावर का एक सरकारी स्कूल है, जहां महज 45 लाख रुपए खर्च करके तलबा को तमाम सहूलियात दी गई हैं, जिनमें आग बुझाने वाले आलात, इब्तिदाई तिबी इमदाद की किट, ठंडे पानी का कूलर और जदीद साउंड सिस्टम भी शामिल है। क्लासेस में LED लगाए और उस LED के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। 4-5 क्लासेस में 6 क्लासेस में मैंने स्प्लिट AC भी लगाए। गवर्नमेंट टेक्निकल हायर सेकेंडरी स्कूल गुलबहार पेशावर में तलबा को खाना रखने के लिए रेफ्रिजरेटर
और गर्म करने के लिए अवन भी रखा गया है। हमारे सर ने हमारी क्लासों में एसी लगाए हैं, जैसे पहले बहुत गर्मी और हमें लगती थी, अब हमें इतनी गर्मी नहीं लगती। जो हम घर से खाना लाते हैं वो हम फ्रिज में रखते हैं और ब्रेक के टाइम हम ओवन में गर्म कर लेते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल परवेज मरवत कहते हैं, सरकार तालीमी इदारों को बच्चों पर खर्च करने के लिए बाकायदगी से सालाना फंड जारी करती है, लेकिन इस फंड का इस्तेमाल कैसे और कहाँ करना है ये करके दिखा दिया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, नियो न्यूज़, पेशावर। कराची में गैर मामूली बरसात होने के बावजूद शहरी पीने के पानी से महरूम है। वज़ीराबाद ब्लॉक 2 में कई माह से पानी की किल्लत है। बार बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई ना हुई। शहरियों ने कहा है कि बिल तो आता है मगर पानी नहीं आता। कराची से सरफराज काइम खानी। कराची में गैर मामूली बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी, फिर भी शहरियों को पीने का पानी मयसर नहीं। जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस पानी की सप्लाई मुअत्तल। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 2 और 8 में पानी की शदीद किल्लत, शहरी ज़हनी अजियत का शिकार। कहते हैं बिल आते हैं पानी नहीं। मुतादिदान से रिक्वेस्ट की गई है, दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं, बिल वक्त पे दिया जाता है और ये पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम है, डिस्ट्रीब्यूशन का फॉल्ट है और ये वॉल मैनों की मर्जी है। रोड आप देखें रोड कैसे हो रहा है, रोड में पानी जमा हुआ है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? फिर जो लाइनों में पानी आ रहा है वो रुक के आ रहा है, किसी घर में आ रहा है किसी घर में नहीं आ रहा। अजीजाबाद के रिहायशी भी पानी ना मिलने पर फट पड़े। भाई हम लोग तो इस तरह फेस करते हैं कि हम कभी किसी से ले लेते हैं, 1-2 बोतल देकर गुजारा कर लेते हैं, जिनके पास स्टॉक होता है पानी का। साल हो गया पानी नहीं है, उसके अलावा पानी आता है, लोगों को टैंकर मिल रहे हैं, टैंकर्स में पानी आ रहा है, हमारे घरों में पानी नहीं है। हम लोग जो है डब्बे भर भर के पानी ला रहे हैं। बारिश हो गई है उसके बावजूद यहाँ पानी नहीं है, पानी हर जगह लगा हुआ है लेकिन यहाँ पानी नहीं है। कराची वाले वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मामूली मुलाजिम के रहमो करम पर वो जिसको चाहे पानी दे, जिसको चाहे पानी से महरूम कर दे। गैर संजीदा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान वॉल मैनों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ सरफराज काइम खानी, नियो न्यूज़ कराची। उधर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में होने वाले एंट्री टेस्ट के खिलाफ तलबा का एहतजाज, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। तलबा ने सरियाब रोड पर धरना दे दिया। पुलिस ने 24 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में होने वाले एंट्री टेस्ट के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। अभी एक ब्रेक। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सूबा प्रैक्टिकल है, 2 सूबे नहीं बन सकते, क्योंकि किस लिए नहीं बन सकते वो भी कि वो बैलेंस ख़राब होता था। क्योंकि पंजाब के अगर 2 सूबे हों तो हर सूबे से 25-25 सेनेटर्स हैं जी। तो इसका मकसद ये है कि अगर एक सरायकी सूबा बन जाए मुल्तान और एक सरायकी सूबा बन जाए बहावलपुर, तो यानी 50 सेनेटर्स बनाने पड़ेंगे, 25 यहाँ से 25 वहाँ से। ये बात तो कोई आपसे करता नहीं है। तो उन्होंने कहा जी 25 जो है उसमें भी अगर 25 मेंबर बनाना पड़े और सिर्फ 2 सूबों से अलग अलग बनाना पड़े तो आपको प्रपोजर और सेकेंडर भी नहीं मिलेंगे सही कि जो प्रपोज कर सके और सेकंड कर सके। इतनी तादाद में लोग नहीं हैं। तो बाकी फिर मसला शुरू हो गया कि दारुल खिलाफा कहाँ है। ये मुझे बताएं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बनने के बाद दारुल खिलाफा कराची बना। पहले बनता है सूबा, फिर बनता है सेक्रेटेरिएट। अंग्रेज़ी में कहते हैं कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब इन्होंने शोर कर दिया, देखें यूसुफ रज़ा गिलानी ने गलत बयानी की, उन्होंने तो सेक्रेटेरिएट भी नहीं बनाया। मैंने उनसे कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप होते कौन है सेक्रेटेरिएट बनाने वाले? अभी सूबा बना नहीं, मेंबर बने नहीं। ये प्रेरोगेटिव अराकीन असम्बली का है कि वो फैसला करेंगे कि सूबा कहाँ होगा, तो आप फैसला करने वाले कौन हैं? तो इसलिए उन्होंने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जब बहावलपुर जाते थे कहते सूबा यहाँ बनेगा कैपिटल, जब यहाँ आते थे कहते मुल्तान में बनेगा।
और जब डीजी खान जाते थे तो वहाँ भी एक किराए का एक दुकान ले ली, कहा कि यहाँ भी एक दफ्तर होगा और ये सेक्रेटरीज तीनों जगहों पे बैठा करेंगे। अब मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती का मामला हल न हो सका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की छुट्टी में मजीद 7 दिन की तौसी कर दी गई। कामरान अली अफजल की छुट्टी 30 सितंबर को खत्म हो गई थी। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड अब्दुल्ला सुंबल का 7 रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मजीद इजाफी चार्ज दे दिया गया है। मियां नवीद से मजीद डिटेल्स लेंगे खबर से मुतालिक। जी मियां नवीद। जी बिल्कुल, 7 दिन के लिए फिलहाल जो है मामला टल गया है और इस वक्त मैं बताता चलूं कि मजीद 7 दिन की जो छुट्टी दी गई है चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल को, इसके बाद जो है वो इजाफी चार्ज के तौर पर पीएनडी बोर्ड अब्दुल्ला सुंबल जो है वो 7 दिन के लिए काम करेंगे। 7 अक्टूबर तक उनकी जो है वो इजाफी चार्ज उनको दिया गया। इस सवाल में बता दूं कि 2 मरतबा जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल जो है वो वफाक को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उनकी सर्विसेज वफाक के हवाले की जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत उनको तब्दील नहीं कर रही। ज़राए ये कहते हैं कि जो है वो वफाकी हुकूमत इस बात का इंतजार कर रही है कि शायद पंजाब में कोई रजीम चेंज हो और वो बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी ही जारी रखे। ताम इस हवाले से अभी 7 दिन के बाद मजीद पता लगेगा कि क्या होता है। जी शुक्रिया आपका। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के बायस एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। सूबे समात्रा में ज़लज़ले के बायस एक शख्स हलाक हुआ। शदीद 9 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समात्रा में ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 और गहराई 10 किलोमीटर रिपोर्ट की गई। 5 मकानात को नुकसान पहुंचा और ज़लज़ले के बाद 53 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।